السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ آج رمضان کے یعنی کہ 15 روزے ہو گئے اور آج ہی میری امی کی شام کو 4 بجے امی کی دعا ہے اور میری امی چھٹا رمضان جمعے کے دن 1 بجے کا انتقال ہو گیا تھا اور آج اتوار کے دن میری امی کی شام کو 4 بجے دعا کے اندر مولانا محمد ہارون ڈیڈوانا سے آ رہے ہیں اور ان کا بیان بہت ہی بڑھیا ہے اور ان کا بیان تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں ان کا بیان تمام سننا اور میری امی کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ دعا کرنا کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور امی کا نیک کام کیا ہے، اسی وجہ سے امی کا انتقال جمعے کے دن رمضان کا مہینہ مبارک مہینے کے اندر انتقال ہوا۔ ایسا دن شاید ہی کم ہی لوگوں کو ملتا ہے، ایک تو جمعے کا دن اور رمضان کا مہینہ۔ آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اور سبھی کو مسلمان بھائیوں کو رمضان کا مہینہ اور جمعے کا دن سے گزارش کرتا ہوں میری امی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے، انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر اس رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو توبہ کرے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے، 11 مہینہ ہم بھی کچھ بھی کر لیں لیکن ایک مہینے کے اندر ہم اللہ سے دعا کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں تو اللہ سنتا ہے۔ اور آپ لوگ بھی دعا کرنا اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں پر بھی ہو وہاں پہ خوش رہو اور رمضان کی زیادہ زیادہ قدر کرے۔ اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا، محمد ہارون ڈیڈوانا کا بیان سن کے لوگوں کا دل خوش ہوا ہے اور آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھ کر اور آگے ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ مزید تمام قسم کی تعریف، حمد، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو آپ کا ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سب لوگ جمع ہوئے روزے کی حالت میں۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اس کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو ہمارے اہل و عیال کے ساتھ روزہ اور اختیار کرنے کی توفیق بخشی۔ آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ہم بے انتہا شکر گزار ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہ اللہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں وہ قبول فرما۔ ہم جو کچھ گناہ کر رہے ہیں اس سے قبل میں اپنا تعارف کرانا بہتر سمجھوں گا۔ اللہ کے بندوں، آج سے 10 سال پہلے اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا میرے اوپر کہ میں نے اسلام کو پڑھا، اسلام کو سمجھا، تحقیق کیا، اللہ نے میرا دل کھول دیا۔ بچپن میں ہمارے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر۔ تم کو نکالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے۔ اللہ کے بندوں، آج ہم اگر بھلائی کا حکم دینا بند کر دیں گے اور برائی کو روکنا بند کر دیں گے
تو अल्लाह के बंदो, अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है। जैसे अभी सैयद फरमा रहे थे, अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है। अल्लाह के बंदो, हमारे सामने एक नई मौत नहीं हुई है। इतने लोग दुनिया से जा रहे हैं, क्या हमें नहीं मरना है? क्या हमें नहीं मरना है? दुनिया का कोई भी इंसान मौत से इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। हर इंसान ये जानता है कि मुझे मौत आनी है, लेकिन खुश नसीब है वो मोमिन, खुश नसीब है वो मुसलमान जिसको पता है मरने के बाद एक और जिंदगी है। सोचो, जो लोग दुनिया में मर रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जिनके पास इस्लाम नहीं है, जो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, सोचिए उनको ये नहीं पता है कि दुनिया के बाद एक और जिंदगी है, और तवील जिंदगी है, बहुत लंबी जिंदगी है। वहां कोई टाई नहीं होगा, वहां पे फाइनल डिसीजन होगा, या तो जन्नत, या तो हमेशा के लिए जहन्नम, या हमेशा के लिए जन्नत। अल्लाह के बंदो, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेइंतहा दरूद व सलाम हो। आखिरी नबी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह व ज़करुल्लाह कसीरा। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, तुम्हारे लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं, एकदम सीधा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाना पीना रहना तमाम जिंदगी के मराहिल में हमारी इस्लाह की है, हमें रास्ता दिखाया है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कोई बात छुपाई है? दीन मुकम्मल है, दीन हम तक पहुंच चुका है। हम जाहिल हैं, हम अल्लाह के नबी के गुनहगार बनते हैं कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल की फरमाबरदारी नहीं करते, हम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मुझे सुकून पहुंचाओ, नमाज पढ़ के मुझे सुकून पहुंचाओ, दरूद शरीफ पढ़ो, मुझे सुकून पहुंचाओ। हम क्या कर रहे हैं? हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को खालिस इबादत के लिए पैदा किया है, सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। एक बात बोलूं मैं आपसे, आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आपके जेब में मोबाइल है, उस मोबाइल को आप जेब में लेके क्यों घूमते हैं? बात करने के लिए, बात करते हैं ना उससे। अगर वो काम करना बंद कर दे, क्या उसको जेल में रखोगे? नहीं रखोगे, डस्टबिन में डाल दोगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया है। अगर इंसान इबादत नहीं करेगा, उसे जन्नत मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। बड़ा अच्छे से बोल दिया नहीं मिलेगी, लेकिन हम करते नहीं हैं, हम करते नहीं हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते। अल्लाह के बंदो, हम दुनिया में मौजूद हैं। एक हदीस सुनाता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जान जाओ कब्र में मुर्दों के साथ क्या होता है, तो तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे, तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। अल्लाह अकबर। अब इस हदीस से क्या समझे? कब्र का अजाब बहुत शदीद है, बहुत शदीद है। अल्लाह बार बार कुरान करीम में कसमें खा खा कर इंसानों को भरोसा दिलाता है। क्या भरोसा दिला रहा है? तवज्जो दीजिए मेरी बातों पर, मैं चंद बातें रखूंगा, मैं मेरी बात को खत्म कर दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में बहुत सारी कसमें खाता है। वल्लैली, रात की कसम, वल्शम्सी, सूरज की कसम, वल्कमरी, चांद की कसम। अल्लाह कसमें खा खा कर क्यों खाता है कसमें? एक बात बताओ, आप सोचो, एक इंसान कसम क्यों खाता है? सामने वालों को भरोसा दिलाने के लिए। अल्लाह कसम क्यों खाता है? ए इंसानों, तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन और आसमान को बनाया है, तब तुम सब, हम सब अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, हमारा हिसाब किताब होने वाला है। इसीलिए अल्लाह बार बार कसम खाकर हमें झिझोड़ता है कि ये अल्लाह के, हमने तुमको पैदा किया है, तुम सब मेरी तरफ लौट कर आने वाले हो। अल्लाह क्या कहता है सुनिएगा, सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये लोगों, अल्लाह ये नहीं कह रहे मुसलमानों, ईमान वालों, अल्लाह फरमाता है ये लोगों, हमने तुमको पैदा किया है, तुम सब मेरी इबादत करो,
तुम सब मेरी इबादत करो। तुम कोई पैदा नहीं किया है, तुम्हारे बाप दादा जो दुनिया से गुजर चुके हैं उनको भी अल्लाह ही ने पैदा किया था। क्यों पैदा किया? ताकि तुम एक बड़े अजाब से बच सको, ताकि तुम जहन्नुम के अजाब से बच जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान करीम में सूरह बकरा में फरमाता है, इल्लल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों जो ईमान लाए हो, इस्लाम कबूल किए हो, नमाज पढ़ते हो, अल्लाह के जिक्र करते हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद भेजते हो, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। शैतान के नक्श कदम पर ना चलो। आप यकीन मानिए, दीन इस्लाम एक ऐसा वाहिद दीन है जो हर मसले का जवाब देता है। हर मसले का जवाब देता है। दीन इस्लाम एक वाहिद दीन है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन के बारे में मैं डिबेट करता हूँ। हर एक मसले पर आप इतने लोग बैठे हो, एक मसला पूछो तो शायद मुझे नहीं लगता एक आलिम के अलावा कोई दे सकता जवाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। आपकी उम्र, माँ की उम्र 9 साल थी। गैर मुस्लिम आपसे पूछे आप क्या जवाब दोगे? हमारे पास जवाब नहीं है। इतना हम इल्म में बहुत परे हैं। 9 साल की उम्र, छोटी बच्ची, उसे भी बहुत बड़ी उम्र का आदमी शादी करता है। क्या सोच रहे हो आप? आपके दिमाग में भी गलत फितूर डाल देगा गैर मुस्लिम, बल्कि तुम्हारे नबी तो ये थे, माज़अल्लाह। मैं इस बात से तौबा करता हूँ अल्लाह से। लेकिन सुनिए, हमारा भी ईमान कहीं ना कहीं कमजोर है। हमारा ईमान इस तरह का मजबूत ईमान नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। अल्लाह के बंदो, सहाबा इकराम ने क्या कुर्बानियां दी इस्लाम के लिए। आप पढ़िएगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर बिन खत्ताब, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अली, हज़रत माज़ बिन जबल, क्या सहाबा ने कुर्बानियां दी है। क्या कुर्बानियां दी है। हमने दीन के 2 कलाम नहीं जानते। सूरह बकरा का 2 अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, सूरह बकरा आप खोलो ना, अलिफ लाम मीम 3 हरफ है। एक हरफ पर 10 नेकी है। रमजान का महीना चल रहा है, आप कुरान पढ़ते हैं, एक हरफ पर अल्लाह ने वादा लिया है कि 10 नेकी है। अल्लाह चाहे तो उसे 700 तक बढ़ा सकता है, अल्लाह चाहे तो। हम कुरान खोलते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब जो कुरान करीम है ना, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, रास्ता है, रास्ता दिखाती है, गुमराही से निकाल कर सीधे रास्ते पर लाके खड़ा कर देती है। क्या था? एक मेघ वर्षा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह फरमाता है समीउल अलीम तो अल्लाह है। अल्लाह का नाम है समी, सुनने वाला। अल्लाह सुनता है हम सब की दिलों की धड़कन में जो चलता है ना हमारे दिल के अंदर, सब कुछ अल्लाह जानता है। अल्लाह तो बहुत करीब है, बहुत करीब है। आप अल्लाह को जानते नहीं हो। आप पुलिस वालों को जानते हो ना, उसके पावर को जानते हो, डरते हो इसीलिए पुलिस से। जब जिस दिन आप अल्लाह का पावर को जान जाओगे ना, अल्लाह से डरोगे। तकुल्लाह हक्का तुकातिही तमन्तुना इल्ला अंतुम मुस्लिमून, हर खुतबे में ये आज पढ़ी जाती है। अगर आप इसका माना जानते तो क्या ही मजा आता, क्या ही मजा आता। तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, डरते जाओ। और मुसलमान ही मरना, अल्लाह ने कहा मुसलमान ही मरना। जब तुम्हें मौत आई तो मुसलमान ही की हालत में है। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो। तुम जहां कहीं भी रहो, अंधेरे में रहो, उजाले में रहो, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। और जब अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा ना, अल्लाह का हिसाब बड़ा सदीद है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है। एक इंसान जिंदगी भर नेक इंसान रहे, उसका खात्मा ऐसे काम पर आ जाए। एक आदमी नौजवान लड़का है जो गानों में गाने, नमाज पढ़ जाए, गाने सुनने लगे, उसे मौत आ गई। किस हालत में आई? गाने सुनने की हालत में आई। कल क़यामत दिन पेश किया जाएगा, गाने सुनने की हालत में पेश किया जाएगा। अल्लाह के बंदो डरो, अल्लाह से डरो। कूलू कौलन सदीदा, अपनी जुबान से हमेशा अच्छी बात बोलो। जुबान खोलो तो अच्छी बात बोलो, बुरी बात ना बोलो। तुम्हारी हर एक बात पे अल्लाह हिसाब लेने वाला है। मैं दुआ करता हूँ मरहुमा के लिए कि अल्लाह ताला इनको
जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन बोलिए अल्लाह के बंदों, आमीन। अल्लाह मरहुमा के लिए कब्र को जन्नत का एक बाग बना दे, आमीन। अल्लाह इस रमज़ान के महीने में हम सब की मगफिरत फरमाए, आमीन। मैं बातें तो बहुत सारी कर सकता हूँ, वक्त इजाज़त नहीं देता। हर एक टाइम टेबल होता है किसी चीज़ का। इस्लाम का बहुत अच्छा नेचर है। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है गैर मुस्लिमों को क्या लगती है? ये बात मैं बता देता हूँ आपको। इस्लाम में टाइम टेबल है। क्या है? सही मुसलमान उसको फॉलो करते हैं या ना करते हो? इस्लाम टाइम टेबल का नाम है। पूछो कैसे? कभी फजर की नमाज 8 बजे हुई? नहीं। कोई कह सकता है? क़यामत तक नहीं कह सकता। कभी जोहर की नमाज इशा बजे से बाद हुई? वक्त पे नमाज, चाहे एक ही आदमी आए नमाज होगी। ये वक्त की पाबंदी है। सहरी का टाइम सहरी के वक्त होता है, इफ्तारी का टाइम इफ्तारी के वक्त होता है। रकातें कितनी पढ़ती है, वक्त कितनी सुन्नत, कितनी नफल, कितनी रकातें पढ़नी, हर एक चीज़ का टाइम टेबल है। इस्लाम इसी चीज़ के लिए वजूद में लोगों के सामने मौजूद है। इसीलिए लोगों के सामने फलता और फूलता है। इसीलिए इस्लाम लोगों के सामने फलता और फूलता है। क्यों? इस्लाम क्या करता है? इस्लाम के अंदर खुद के अंदर खूबियाँ हैं, मुसलमानों के अंदर खूबियाँ नहीं है। अब क्या सोच रहे हो? हम सब लोग अच्छे इंसान हैं। अपने गिरबान में जाग के रात को तनाई में सोचना कि मैं कितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमाबरदार बंदा हूँ, मैं अल्लाह का कितना शुक्रगुजार बंदा हूँ, मैं कितना नबी की सुन्नतों पर अमल करता हूँ। हम सोचेंगे ना ऐसा तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू तारी हो जाएंगे जब हम अपना हिसाब खुद लेंगे। आज हम दुनिया में क्या करते हैं? फला ऐसा, फला ऐसा, फला ऐसा। हम दूसरों का हिसाब लेते फिरते रहते हैं सारे दिन। मौलाना साहब का हिसाब ये, उसका फलाना का हिसाब ये। कभी अपना हिसाब लिया? कभी अपना हिसाब लिया? कितनी फजर की नमाजें पढ़ी, कितनी सुन्नतें पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितनी माँ बाप की बात मानी, कितनी फरमाबरदारी करी? कभी कुछ हिसाब लिया अपना? नहीं लिया। अल्लाह के बंदो, लोगों को हिसाब लेना छोड़ दो, अपना हिसाब लो। कदफल मन तज़क्का कदर अस्मा रब्बी फसल्ला। क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? जिसने अपनी नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। एक कुरान की आयत है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाता है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम उनको हमेशा के लिए उस जन्नत में दाखिल कर देंगे जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। क्या है मोमिनों के लिए? मोमिनों के लिए जन्नत के अंदर हूरें हैं, रेशम के मोटे तख्त लगाए जाएंगे, सोना उन पर हलाल है, शराब उनके लिए हलाल है। ऐसी ऐसी नेमतें हैं ना किसी आंख ने देखी है ना किसी कान ने सुनी है। अल्लाहु अकबर। क्या ऐसी जन्नत को छोड़कर किसी ऐसी जिंदगी के पीछे भाग तो नहीं रहे हम जो चंद दिनों की है, चंद घंटों की है? ऐसी जिंदगी के पीछे हम भाग रहे हैं, रात दिन भाग रहे हैं। बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, सब कुछ सफेद हो गया, लेकिन दुनिया में उसके पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे एक भूखा रोटी के पीछे भागता है। भूखा आदमी रोटी कैसे तलाश करता है? उसी तरह की इंसान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान को एक सोने का पहाड़ दे दिया जाए तो दूसरे की तलब करेगा, अगर उसे 2 दे दी जाए वो तीसरे की तलब करेगा, उसका पेट कभी नहीं भरेगा। इंसान का पेट क्या भरेगी? कब्र की मिट्टी। अल्लाह के बंदो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। अपने अमाल नामा को अच्छा बनाएं, ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन रुसवाई का सबब बन जाए। चंद बातें थी, बातें बहुत सारी है, हम रख सकते हैं, वक्त इजाज़त नहीं देता। हम दुआ ही करते हैं। नमाज पढ़ते हो, अल्लाह से दुआ करते हो, क्या आपने कभी नबी की जिंदगी पढ़ी है? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आपने नबी की जिंदगी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, दुनिया का सबसे अच्छा सौर, दुनिया का सबसे अच्छा बाप, दुनिया का सबसे अच्छा रहमतुल लिल आलमीन, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, ये हमारी बदनसीबी नहीं है?
اس نبی کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے جو ہم تک اسلام پہنچائے ہیں, جو ہم تک دین پہنچائے ہیں, جنہوں نے ہمیں کھانا سے لے کے ٹوائلٹ سے لے کے ہر چیز سکھائے ہیں. ایک بار حضرت علی کو ایک مشرک مکہ کے آدمی نے کہا, تیرا نبی ٹوائلٹ کرنا بھی سکھاتا ہے. ہنس کے کہا, ہنسی مذاق اڑایا, اس کا مذاق اڑایا. تو حضرت علی نے کیا, ہاں میرا نبی تو ٹوائلٹ کرنا بھی سکھاتے ہیں. بڑی خوشی سے کہا. کیوں کہا؟ ایمان اس لیول کا تھا. ہمارا نبی اتنی باریکی چیز سکھا رہا ہے اور ہم سیکھ نہیں رہے. اللہ کے بندو, آپ دیکھیں گے ایک عورت ہے جس کا شوہر, جس کا بیٹا جنگ کے اندر جاتے ہیں لڑنے کے لیے, اللہ کی راہ میں جاتے ہیں. میں یہ آپ کو اللہ کے رسول کی محبت کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ, کہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے. ایک عورت کو, ایک مومنہ خاتون کو, اس کا بیٹا اور شوہر جنگ میں جاتے ہیں اور خبر آتی ہے, اے مومنہ خاتون, تیرا شوہر تو شہید ہو گیا ہے. تو وہ خاتون کیا بولتی ہے پتہ ہے؟ کوئی بات نہیں, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. میرے نبی کیسے ہیں, میرے نبی کیسے ہیں. تھوڑی دیر بعد میں اور خبر آتی ہے, اے مومنہ خاتون, تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. کیا پوچھتے ہیں کہ تیرے نبی کیسے ہیں, میرے نبی کیسے ہیں. اللہ اکبر, اتنی محبت ہمارے اندر ہے. ہم تو, ہمارے اندر نبی کی محبت ہوتی تو ہم نبی کو ضرور پڑھتے. میں بتاؤں, میں مسلمان ہونے کا ایک ریزن یہ بھی ہے, میرا مسلمان ہونے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میں نے نبی کو پڑھا ہے پورا مکمل. جنگ بدر کب ہوئی تھی, جنگ احد کب ہوئی تھی, جنگ خندق کب ہوئی تھی, جنگ تبوک کب ہوئی تھی, جنگ حدیبیہ کب ہوئی تھی, ہر چیز کا مجھے علم ہے. میں پڑھا ہوں ان چیزوں کو. آپ کے سامنے کھڑا ہو گئے یہ بڑی بول دی نہیں میرے بھائی. آپ لوگوں کی, میری, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کا علم حاصل کریں. آپ دنیا کا علم حاصل کرنے سے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ہے. آپ ڈاکٹر بنیے, انجینئر بنیے, سوشل میڈیا پہ گھومیے پھریے, آپ کو کوئی منع ہی نہیں ہے. لیکن اپنا جو روح کا تعلق اللہ سے ہے اس کو جوڑے رکھیے. اللہ کے بندو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, دو چیزوں سے اللہ کے لیے حج کرو. یہ کیا ہے؟ یہ قانون ہے اللہ کے, اللہ کے حدود ہے, اللہ کے حدود ہے. ایک بات پوچھتا ہوں, یہ گھر ہے, اس گھر کی باؤنڈری ہم کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ کوئی غیر اندر نہیں آئے. ہم ڈائریکٹ جائیں تو رستے سے آئے, رستے سے آئے, یہی بات ہے نا, اسی لیے باؤنڈری بناتے ہیں. اسلام نے, اللہ نے اسلام کی باؤنڈری کھینچی ہے, پوری باؤنڈری کھینچی ہے. کہیں سے بھی چور دروازہ نہیں رکھا ہے. ایک غیر محرم, ایک عورت کے لیے غیر محرم ہی رہے گا. وہ کسی بھی طریقے سے وہ اس کے لیے نکاح سے پہلے حلال نہیں ہو سکتا, کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا. یہ چور دروازے نہیں ہے اسلام میں. اسلام نے پوری باؤنڈری کھینچی ہے, کسے نکاح کرنا ہے, کسے نہیں کرنا ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ پڑھیے, سورہ نور پڑھ لو, سورہ توبہ پڑھ لو, سورہ نساء پڑھ لو. قرآن کے اندر پورا مکمل واقعہ آیا ہے, قانون. سورہ نور ہے نا, سورہ نور, سورہ نور پڑھیں گے آپ تو اس میں پورے اللہ نے قانون نازل کیے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ایک غیر مسلم بھائی نے مجھے کل پوچھا کہ بھائی اسلام کیا ہے. تو میں پیسے پہن کے گھومتا ہوں جودھ پور میں, دہلی میں, اس طرح بھی پڑھ کے آ رہا تھا. تو وہاں راستے میں بیٹھے تھے, ہولی کھیل رہے تھے, وہ لال ہو کے کہ بھائی اسلام کیا ہے. میں نے, اسلام یہ ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بتاتا ہے, یہ اسلام ہے. غلط کو اور صحیح کو, غلط کی پہچان کرواتا ہے اور صحیح کی بھی پہچان کرواتا ہے. ہمارا دین ایک بھی, ہمارے دین میں ایک بھی فیسٹیول, ایک بھی ایسا تہوار نہیں ہے جس کے اندر ہم کسی کو تکلیف پہنچائے. تو اس نے ایک سوال اور کر دیا کہ یار اسلام میں تو دو عیدیں ہیں, دو ہی تہوار ہیں. کتنے تہوار ہیں؟ دو ہی تہوار ہیں, ایک عید ایک بقرعید. تم مزے کیسے کرتے ہو, باتیں کیسے کرتے ہو, نئے کپڑے کب پہنتے ہو, گپ سپ کھانا کب کھاتے ہو. میں نے کہا دیتا ہوں جواب. میں نے اس کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ مسلمانوں غور کریے گا, ایک مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے, ہر نماز میں کتنے لوگوں سے ملتا ہے؟ تم کسی تہوار پہ کتنے لوگوں سے ملتے ہو؟ 50 لوگوں سے, 100 لوگوں سے. ہم 5 وقت میں 50 لوگوں سے ملتے ہیں. کپڑے نئے پہنتے ہو, ہر جمعے کو نیا کپڑا پہنتے ہیں. کھانا ہمارے ہفتے میں کتنی نئی ڈشیں بنتی ہے. کھانا ہر دن, مسلمانوں کھانا کے بڑے بہت ٹیسٹی, یعنی بہت لاجواب لوگ ہوتے ہیں. ان کو کھانا بڑے لذیذ چاہیے.
खाने के बगैर नहीं रह सकते भाई, बकरा चाहिए तो चाहिए। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, खाने के मामले में आप 2 दिन खाना अच्छा खाते हो, हम पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे पूरे साल अच्छा खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं जब ईमान लाया था एकदम पतला था, हड्डियां गले की निकली हुई थी। मेरी माँ ने मुझे देखा, आज से 9 साल पहले मेरी माँ ने देखा, कई महीने दुबई में मुझे देखा, तो मेरी गले की हड्डियां निकली हुई थी, एकदम पतला था, जानते हैं। उस वक्त मुझे लाए हुए 2 साल ईमान लाए हुए थे। तो ये जो पेट, ये बॉडी ऐसे ही नहीं आई, अल्लाह का एक फजल हुआ है, अल्लाह ने अपना रिस्क दिया है मुझे, मैं खाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब ये है, मैंने उस भाई को बताया, मैंने कहा भाई हमारे यहाँ पूरा रमजान का महीना त्योहार है। क्या है? देखो हम ईशा की नमाज पढ़ते कितनी खुशी मिलती है, इफ्तियार करते कितनी खुशी मिलती है, वो खुशी तुम पूरी कायनात मिलकर दिखा दो, ऐसी खुशी नहीं मिल सकती, वल्लाह नहीं मिल सकती। मैं तो उसी उन सब चीजें में तो निकल के आया हूँ, मुझे तो पता है मेरे भाई कितनी खुशी कैसे मिलती है, कौन सी खुशी, हमारे बच्चे कितने खुश होते हैं, हम कितने खुश होते हैं, हमारी बीवियां कितनी मेहनत से खाना तैयार करती है, दस्तरखान सजाती है। ये इस्लाम की खूबसूरती है। आज तुम इस इस्लाम को जाया कर दोगे ना, फिर तुम इस्लाम तो अपनी जगह फलेगा फूलेगा, लेकिन तुम खुद नाकामयाब हो जाओगे। सोचिएगा, गौर फिक्र करिएगा अपनी जिंदगी में। और आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। भूखी रहेगी ना भाई, उसकी रूह बेचैन हो जाएगी, उसकी रूह शैतान की गुलाम हो जाएगी, उसकी रूह बदकारी पे उतर जाएगी, फिर तो शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नबी को भेजा, वो तुम्हारा तज़किया करता है, वो तुम्हें रहमत की तरफ बुलाता है, वो तुम्हें अपनी रहमत के साये में बुलाता है, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अल्लाह के बंदो, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल को जाना, उन्होंने पहचाना। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत लंबा सफर करके आए, वाकई बहुत तवील है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कुछ निशानियां बताई गई थी राहगीर ने, वो पहले क्रिश्चियन थे, कि ये निशानियां हैं तेरे नबी की, मोहर होगी उनके, और वो सदका नहीं खाएंगे। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ खजूरें या अंगूर, हदीस में ऐसा कुछ मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, आप सदका, ये मेरी तरफ से सदका है। तो आपने सदके खाने से मना कर दिया कि नबी सदका नहीं खाते, किसी और सहाबी को दे दिया। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला को यकीन हो गया कि हाँ ये नबी है। पहली जो थी निशानी वो मुकम्मल हो गई। दूसरी निशानी ये थी कि उनके दस्ते बाजू पर मोहर थी, नबूवत की। तो वो मोहर देखने के लिए बड़े बेचैन थे सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला, कैसे करके मोहर दिख जाए। एक वक्त था कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला घर में दाखिल हुए, जिस हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, तो कुछ बदन पे नहीं था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझ के कुछ इस तरह से अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चीज़ें सिखलाई गई थी। तो उसी तरह सलमान फारसी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ देख के देखा कि मोहर की, नबूवत की मोहर थी। तो आए और कहा कि मैं आपको नबी मानता हूँ और मैं आप पर ईमान लाता हूँ। और यही कलमा पढ़े, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक खजूरों के बाग था जहाँ पर वो गुलाम थे। देखना इस बात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियाँ दी है सहाबा इकराम के लिए। कहते हैं ना सहाबा इकराम से नबी कितनी मोहब्बत करते हैं। इस वाक़े से आपको पता चलेगा कि सहाबा इकराम से नबी कितनी मोहब्बत करते हैं, और नबी से सहाबा इकराम कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत तो एक रेत का दाना लेके रखे ना हाथ में, वो इतनी भी नहीं है अल्लाह के रसूल से, सच में नहीं है। हम मोहब्बत में दाढ़ी तो नहीं छोड़ देते, नहीं भाई मुसलमान कह देंगे लोग मुझे, अभी तो मैं हिंदू जैसा लग रहा हूँ, इसी तरह में नहीं रख रहे हैं। अपने दिल से पूछो, अल्लाह की कसम इसीलिए नहीं रख रहे हैं। मेरे बाप मुझे कहा दाढ़ी काटते बेटा, और घर में आ जाओ और कुछ नहीं चाहिए, दाढ़ी काट के आ जाओ, तो नमाज पढ़ कमरे में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये मेरी आइडेंटिटी है, ये क्या है, आइडेंटिटी है, इसीलिए इससे तो लगता हूँ मैं मुसलमान, इसी से मैं नए काम करता हूँ, लोगों को दिखता हूँ कि भाई आदमी मुसलमान है। अल्लाह के बंदों,
देखो सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं कि अल्लाह का रसूल मैं गुलाम हूँ और मैं गुलामी से आज़ादी चाहता हूँ, मेरा जो मालिक है मुझ पर बहुत जुल्म करता है। बोले कि ठीक है, तेरे मालिक से बात कर, कितने रुपए लेगा, कितने दिनार लेगा कि तुझे रिहा कर देगा। वो गया बात करने के लिए, तो बोला कि तू 300 पेड़ लगा दे खजूरों के, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। क्या बोला? 300 पेड़ खजूरों के लगाने, एक भी जलना नहीं चाहिए, एक भी, इन्हीं सब के सब हरे होने चाहिए, सब के सब लगने चाहिए, तब जाके तुझे रिहा कर दूंगा। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, अल्लाह के नबी मेरे मालिक ने तो ऐसी शर्त रखी है कि मैं पूरी ना कर सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरे नबी तेरे साथ है, तू क्यों डरता है, तू क्यों घबराता है? क्या फरमाए? तू पेड़ तैयार कर 300, मैं मेरे हाथों से लगाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, सलमान फारसी पेड़ देते हैं खजूरों के और आप लगाते हैं, आपके मुबारक हाथों से आपने 300 पेड़ लगाए। कितने? आप एक पेड़ नहीं लगा सकते घर में, 300 पेड़ कितनी दिन की मेहनत, एक दिन में नहीं लगाए, हफ्ते भर का वक्त लगा, कोई मजदूरी नहीं, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन फी सबिलिल्लाह। क्या कुर्बानी नहीं है? एक नबी, अंबिया, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिखाया, 300 पेड़ लगाए, एक भी नहीं जला, अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान फारसी को रिहा कर दिया, उसने गुलामी से आजाद कर दिया। ये मोहब्बत थी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, किसके लिए? सहाबा के लिए। ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं। उमर बिन खत्ताब जो इस्लाम लाने के बाद में क्या किए पता आपको? जब जाके एक मक्के के अंदर एक आदमी था जो चिल्ला चिल्ला के, जिसको बोलते हैं कि ऐलान करने वाला, ऐलान करते भाई ये फला आदमी आज मुसलमान हो गया, मक्के में ये हो गया, ऐलान करने वाला, उसको जाके बोला जाके बोल दो कि आज उमर मुसलमान हो गया। बोले कि उमर मुसलमान हो गया? हाँ उमर मुसलमान हो गया। जाके उसने ऐलान किया, ऐलान करने वाले ने ऐलान किया आज उमर बिन खत्ताब, उस खत्ताब का बेटा मुसलमान हो गया है। बोल के अच्छा, हाँ। सबको बुलाए, उमर बिन खत्ताब काबे के पास आए। आप सोचिए, उमर बिन खत्ताब कहते हैं, एक रिवायत में है, रहीकुल मखतूम सफीकुर रहमान मुबारकपुरी की किताब में लिखा दर्ज है पूरा वाक्य, जिसके अंदर उमर बिन खत्ताब के अल्फाज है, ये लोगों ने मुझे जूतियां मारी और मैंने भी उनको मारा और मुझे मजा आया। यार क्या साहबत है, नबी की दस्ते बाजू और सहाबा की मोहब्बत ये दीन की तरफ नहीं खींच के लेके आती है। कैसा इंसान होगा जिसका दिल इस्लाम पर नहीं लरसता है? कैसा इंसान होगा वो जो इस्लाम के लिए कुर्बानी देना नहीं चाहता होगा, जो फजर में उठ के मस्जिद तक नहीं जाता होगा, वो कैसा मुसलमान होगा? क्या नाम के कलमा को मुसलमान बनना चाहते हो? नहीं मेरे भाइयों, अमाल के बनिए, खौफ इलाही, अल्लाह का खौफ पैदा करें, अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें। फायदा ही फायदा है, दुनिया में भी फायदा है। अल्लाह तुम्हें जिल्लत से बचाएगा, इज्जत के ताज पहनाएगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह तुम्हें दुनिया में इज्जत के ताज पहनाएगा। और आप देख ले मुसलमान